government sector. We also need the money because in giving you the midday meal, some expenses are required. In giving you the books, the expenses are required. So here, how could you manage the expense? Not nothing, everything from your treasury all the time is not possible. तो कहीं से तो आपको benefit होना चाहिए सर. तो benefit plus welfare. The main intention of private sector activity is only benefit. In order to maximize profit, you need to minimize your production cost. कोई चीज आप बना रहे हैं, कोई भी चीज एनीथिंग, उसको कम से कम दामों में आप बनाएं. तो और उसके बाद क्योंकि whenever you are taking your product, suppose I have manufactured chalk. So in the market there are many companies whose chalks are available, not only mine. And everybody more or less are being charging the same price. So there is a competition for me as a producer in the market. So in order to sustain that competition, I'll have to first of all give my quality. Through the advertisement to the people, to the customer, I would say my chalk is better than others. Now just saying is not good enough. I'll have to also show that my chalk is better than others. So I'll have to convince the people that mine is better than yours or others available in the market. Second thing, my price is also competitive and affordable than others, because that is also very important thing. So if others are selling the things on 10 rupees per chalk or suppose the per packet or like that, then I am ready to sell on the 9 rupees also or 9.5 rupees also. Now even in that one, I need, because you see one is selling 10 rupees per packet, another is selling 9 rupees per packet, another is selling. Why they are all doing that? Because so far the chalks are concerned, so far the products are concerned. If I think I will give my product of the best quality to the customers in order to attract the customers, this will also think like that. Everybody knows this particular equation कि भाई मार्केट में अच्छा क्वालिटी देंगे तभी मेरा चलेगा. ये खाली हम ही तो नहीं सोच रहे. So they have also, the A has also given the good quality, B has also given the good quality, C has also given the good quality. Now for a customer, so far quality is concerned, almost all of them are equal. In this modern competitive world, nobody can cheat others without giving the quality for a long period of time. Suppose once you have cheated me, I came into your words and you have cheated me. The next time I will not come to you. Okay. So far quality is concerned, nobody has compromised on the quality. Then how can I, here is that cost where I can attract my customer than others. Okay. In that case, if others are selling on 10 rupees, I am ready to sell on 9 rupees. But I am ready to sell on 9 rupees. It means what? That there must also be the profit for me on 9 rupees. That is also very important. So how could I? Because suppose that A is selling this one, whatever, say the raw material cost is fixed. If I have purchased the raw material from any sources, that I am dependent on others. So whatever the price the raw material will be sold, I'll have to purchase the raw material because that is the main thing. Second thing, the labor input, I'll have to give the labor wages. So then what should I do? Near to the market, where could I solve the or save the money? Say the raw material is available on 5 rupees. Suppose somebody has located industries here, somebody has located here, and somebody has here. This C will be benefited. Why? Because the distance from the source of raw material to the company is less than others. As a result, transportation cost will be minimal in the case of C than in the case of A or B. Okay? So these are the factors that we keep in mind while before setting up the industry, is that the nearest to the production of the
raw material, source of location, nearest to the market if possible, so that not only the raw materials can be brought cheaply and easily into the factories, but the finished product, that is final product, can also be cheaply and easily sent into the market. So these are the factors, calculations I keep in mind while locating the industry. So let us see what are those factors that are kept in the mind before setting up of the industries. So if you look at the world map, you will see that industries have developed in a few specific locations. Not everywhere in the world the industries are set up. They have been set up at a particular places. Some areas of the world, some areas in your country, some areas in your locality, where you have a density of the industries, dense location, concentration of industries are very much high. Some areas where it isn't. So these are there has to be some reason why in a particular area there are number of industries maximum, why in a particular area there are some number of industries minimum or thinner. One side is of thickest, another side is thin. There has to be some reason, कुछ तो वजह होगा, ठीक है? तो भाई अब अगर हमको फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाना है, if I have to construct the building of the factory, so वहाँ से शुरू होगा बात. तो देखेंगे where it is easy to make the buildings, where the landforms are easy, plain, समतल, ठीक है? Now the different types of the relief features, we know that one is in India. Take for example, in India the northernmost part of India is a Himalayan region, is a mountainous region, and in a mountainous region you have a zigzag uneven landforms, that is called rough terrain, okay, not easy, not smooth. Below that one is the northern plain of India where we live, but northern plain of India where the maximum population are living, we have a settlements also. So construction would be easier in comparison to the mountainous region on the northern plains. Why? Because we have a flat surface here. Then the climate conditions. In Himalayan region there is extreme cold. It would be very difficult for the people also to work, to manage the things, and even into the freezing cold of below the freezing point, that is minus 40 degrees Celsius, 45 degrees Celsius. Who knows that the machines may also not work properly. Okay? So the technology may also just start behaving in a different way in those extreme climatic conditions, be it very hot, be it very cold. कहते हो ना, कभी सुने होंगे कि बहुत गर्मी है, एक तो ऐसे मशीन चलते चलते गर्म हो गया, बाहर से भी गर्मी है, पता चला कॉइल उड़ गया, तो ये हो गया. तो मींस देयर वुड बी, हो सकता है कि इनसाइड द फैक्टर्स माइट नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, बट देन एक्सटर्नल एक्सट्रीम क्लाइमेट विल डेफिनेटली अफेक्ट. एक ऐसा जगह पे इंडस्ट्रीज लगाए जहाँ पे बहुत पानी बढ़ रहा है, मेघालय में लगा दिए, then it will be very difficult to bring the raw material, to carry the things, to manage the resources, to manage the wages or labors etc. तो भाई वहाँ पे प्रीफर नहीं करेंगे. तो ये सब चीज़ दिमाग में लगा रहे ना हम लोग, कि अगर हम लोगों को थर्मल पावर स्टेशंस लगाना है तो कोल माइंस के बगल में लगाओ जितना जल्दी, ताकि लोडिंग अनलोडिंग में देखते हो कार्बन झड़ता है, तो वही कार्बन ही तो मेन है कोयला में, और क्या रहता है. तो एक बल्कि मटेरियल है, लोडिंग अनलोडिंग में वेस्टेज भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हेवी होगा. तो जितने हेवी इंडस्ट्रीज है, वी हैव स्टडीड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज आर लाइक दैट ऑफ अ बिग इंडस्ट्री, जिसमें कुछ हेवी भी होता है. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसमें रॉ मटेरियल जो लगेगा वो क्या लगेगा, आयरन ओर. आयरन ओर क्या है, बहुत हेवी मटेरियल होता है. तो हेवी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दूर तक करने में कॉस्टली प्लस डिफिकल्ट भी होगा. तो इजी क्या कर ले कि नियरेस्ट टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगा ले. इसलिए देखो जितना आयरन एंड स्टील प्लांट है सब वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन माइंस, आयरन ओर भी बहुत मिल जाता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए we keep these factors in mind before locating the industries. So if you look at a world map, you will see that industries have developed in a few specific खास जगह पर located है. Huge investments are involved in setting up and functioning of any industry. Now that is very important कि आपको बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है. You have to spend a huge money in order to set up industries, and not only set up but to run, to manage them, from the raw material to the building cost, the construction cost, the workers, both type of workers, the skilled and unskilled, both physical laborers are also required, then the engineers and supervisors are also required.
So you need to pay them, and as a result you have to invest a lot. Larger the investment, more the intention of profit. Okay, any investment, as I have told, any investment is been made with the intention of earning profit in future. If you are investing anything on a large scale, of course you would want the return in the form of the profit also on the large scale. ठीक है, तो कैसे आएगा भाई? तो मार्केट में खाली हम ही तो नहीं है कि हम फिर जितना दाम में चाहे उतना बेच लें और सबको खरीदना पड़ेगा इफ आई एम द ओनली एंटिटी इन द मार्केट। लेकिन है तो नहीं ऐसा। देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ माइन हूम almost everybody has been following the same process, the same mindset, the same technology. तो क्वालिटी भी उनके पास है और सब चीज़ वही है जो मेरे पास भी है। तो कहाँ उनको compete कर सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी में, यानी दाम कम में, कटिंग ऑफ द कॉस्ट में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हेंस देयर लोकेशंस रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग कि तुम्हारा सामान अभी ठंडा का समय है, इनको वुलन कपड़े की ज़रूरत है। एक इंडस्ट्रीज है जो जम्मू कश्मीर पे एक बगल में गोले यहाँ से ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव बीन कि भाई यहाँ पे देर इज इन एंड अराउंड इट देर इज नो वुलन क्लोज फैक्ट्री, सो लेट अस ओपन अप सो दैट इफ द आई मीन हियर द शॉपकीपर्स आर डिमांडिंग इट दे विल गिव अस द फर्स्ट प्रेफरेंस कि उनको भी जल्दी मिल गया, क्विकली मिल गया। सो इस तरह का कुछ भी चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्लानिंग। ठीक है, नंबर ऑफ, और उसके बाद अब प्लानिंग में बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा हमको। क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स कंबाइन टू डिसाइड द लोकेशन। प्लेसेस वेयर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड। मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, खर्चा कम से कम लगे, और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ताकि फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई सबसे जो पहला चीज़ है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ईजिली, क्विकली, चीपली, रेगुलरली। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सर थोड़ा सा कोयला है यहाँ पर, हो सकता है 5 साल चलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, रिजर्व खत्म हो गया, तो नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 साल के बाद मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी या कहीं और से मंगाना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए काम करना है। सो कॉन्टीन्यूस, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। एक तो कॉन्टीन्यूस मिलता रहे, एश्योर्ड हुआ कि मिलना ही मिलना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस, इमरजेंसी में कुछ हो सकता है, मगर नॉर्मल केसेस में यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल रेगुलरली, दैट एश्योरेंस हैज टू बी देयर फॉर द रनिंग ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन और ऑफन डिसाइड्स लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, हेवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, यूजिंग हेवी एंड बल्की रॉ मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील, और कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ भाई? तो माइन एरिया के आसपास ही लगा, ताकि आसानी से इजीली, चीपली, क्विकली सब मिल जाए। ठीक है, इंडस्ट्रीज यूजिंग पेरिशेबल रॉ मटेरियल। अब मान लो कुछ ऐसा चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, दैट इज वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ शुगर मिल्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब शुगर में क्या होता है? शुगर इंडस्ट्रीज में या शुगर मिल में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो कौन सा रॉ मटेरियल होगा सर? व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द शुगर इंडस्ट्रीज? शुगर केन। अब शुगर केन को मान लो मैंने एक इंडस्ट्री लगाया जम्मू कश्मीर में और शुगर केन यहाँ पे है, तो आप यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, कोई रास्ता में जाम में लग गया, पता चला 4 दिन ट्रक जाम में खड़ा है, तो क्या हो गया? सूखेगा। सूखेगा तो जूस सूखेगा, उसका जूस में क्या होता है? वही जो सुक्रोज कंटेंट होता है जिससे आप चीनी निकालेंगे। आपने तो फ्रेश खरीदा यहाँ पर, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते इट बिकेम ड्राइड अप। तो बेटर है कि हम ही लोग मिल करके, उसमें ज़्यादा करना नहीं है, बॉईल करना है, थोड़ी प्रोसेसिंग करनी है, थोड़ा केमिकल ऐड करना, और तो दैट इज़ वाई द शुगर मिल्स जहाँ पे देखेंगे वहाँ रॉ मटेरियल के पास ही कि तुरंत मिल भी गया हमको, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर सके 10 दिन। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि हम ला करके स्टोर करके रख लिए, तो अब क्या हो गया कि यू नीड सम इंडस्ट्रीज टू बी, अदरवाइज क्या होगा कि घाटा होगा। ठीक है, तो हम उसको लेकर स्टोर करके नहीं कि 50 टन हम लेकर के रख लिए, अब जब यूज़ होगा तो लगाएंगे। जब यूज़ होगा, आपने 50 टन का जो कैलकुलेशन किया, हो सकता है 10 दिन में वो सूख करके
45 टन ही बचे तो आपको तो घाटा हो गया फिर. So examples using heavy industries using perishable, that is destructible raw material like sugar are located near sugar cane producing regions. Industries based on raw material imported from foreign countries are located near ports. अब लगाए देखो प्लान कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिनके रॉ मटेरियल्स हम लोग नहीं यूज करते, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. तो कहाँ से आ रहा है भाई? तो ऑयल फील्ड के आसपास से. अब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन कंट्री से उस रॉ मटेरियल को मंगा रहे हैं, तो हम लोग सी पोर्ट के आसपास, ताकि आना ले जाना बहुत आसान हो. ठीक है. सेकेंड, बिकॉज when we talk about the factory, the image that comes in our mind is that the production is being done on a large scale, and most of the production are done mechanically with the help of machines. So small scale sorry, so small scale industries या कॉटेज इंडस्ट्रीज का जब इमेजिनेशन लाते हैं, तो कुछ लोग घरों में बैठकर अपने हाथों से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, ये दिमाग में इमेज बनता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देखेंगे हम लोग. हमेशा जनरेटर चला के पता चला उसमें जनरेटर में तेल भी डाल रहे हैं और तब मशीन डाल रहे हैं, तो दैट विल बी वंस अगेन कॉम्पिटिटिव. अब एक आदमी है जो कि उसको हमेशा पावर मिल रहा है इजीली, चीपली, रेगुलरली, और एक है जो कि क्वालिटी सब सही है लेकिन उसको जनरेटर चला करके मशीन चलाना पड़ रहा है, तो जाहिर सा बात है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भाग जाएगा. तो मार्केट में जब वो पहुंचेगा तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू सेल द थिंग्स ऑन द मिनिमम प्राइस. ठीक है. तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो नहीं भेज सकेगा इस तरह से. तो सेकेंड हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन मैकेनाइजेशन, मींस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दे आर रनिंग. So regular and cheap source of power is used for running them. Industries like smelting of ores. Who will tell me smelting of ores? मैंने तो second is because there are many who are sitting at home ना, तो उनको deliver कर दिया जा रहा है. So power supply is also important because with the help of the machines we are smelting the things. There are many processing, बहुत सारा, ना केवल smelting, there are another things also. There are another process of manufacturing anything. So all of them are requiring some sort of a power. So the second factor that we take under consideration, अब गुड्डा में मान लो लगा लिए, क्या होता है यहाँ पे? बिजली अभी तक जब तक आया नहीं, ठीक से ग्लो नहीं किया कि चला जाता है, टंगस्टन दिखा भी नहीं ठीक से कि पता चला लाइट चला जाता है. ठीक है. सो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बहुत, ठीक है, जिसको हम लोगों के लिए क्या करना पड़ता है? यूपीएस लगाना पड़ता है, दैट इज अनइंटरप्टेड. अब इतना लगा करके तो यू कैन नॉट रन अ फैक्ट्री. सो द सेकेंड फैक्टर दैट यू फर्स्ट इज दैट इज द नियरेस्ट टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. सेकेंड इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ठीक है. थर्ड, द लेबर. बोथ टाइप्स ऑफ द लेबर्स आर रिक्वायर्ड. I need the good amount of the managers as well as the good numbers of the laborers. क्योंकि we have a lot of types of the. I need a weaver also. I need the dyer also. I need the skilled craftsman also, and I need the physical labor जो कि लोडिंग अनलोडिंग भी करे. ठीक है. वहाँ से कॉटन लाया, उतारा, चढ़ाया, बांधा, पैकिंग किया, फिर मार्केट में लेगा. तो बनाने में बहुत स्किल मीन्स व्हाट? दैट इज स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन, जिसको कहते हैं ना पर्टिकुलर आर्ट में. जैसे से द इंजीनियर्स, कॉटन टेक्सटाइल, माइनिंग इंजीनियर, वो स्किल है, वो बताएगा कहाँ क्या है, कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस है, कौन टेक्नोलॉजी लगेगा. एवरीथिंग दैट इज स्पेसिफिक अबाउट द digging of the minerals from the earth bed. So that specific training, well trained, educated persons using the brain are called. There are two types of the people. Who is doing a mental labor is called skilled person, and who is doing only the physical labor is, and combination of both. एक आर्किटेक्ट ने अपना दिमाग, अपनी पढ़ाई, अपने नॉलेज स्किल के हिसाब से बिल्डिंग का नक्शा बनाया, उसके हिसाब से मैसन ने उस पर घर बना दिया. बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड. अब मान लो कि वी नीड कि हमको पूरे शहर में एक ही आर्किटेक्ट मिल रहा है. इफ देयर इज ओनली वन आर्किटेक्ट हु कैन डिजाइन द बिल्डिंग. सो इफ देयर इज वन पर्सन एंड देयर आर मेनी पीपल हु इज अप्रोचिंग टू द वन पर्सन फॉर मेकिंग द डिजाइन, ही विल चार्ज मोर. होगा ना कि कोई एक ही पर्सन है और 10 आदमी उसके पास पहुंच रहा है नक्शा बनाने के लिए, तो बोलेगा भाई मेरे को इतना पैसा दोगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं. तो व्हाट इज प्रॉफिट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दीज पीपल? कि बहुत भी लोग हो, बहुत लोग होगा तो सर आप अफोर्डेबल नहीं होगा, दूसरे के पास जाएंगे.
तीसरे के पास जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी. सो वी नीड द सप्लाई ऑफ लेबर, बोथ टाइप ऑफ लेबर, स्किल्ड भी मिले और अनस्किल्ड जिसको फिजिकल कहते हैं वो भी मिले. So industries like rubber and jute industry requiring lots of manual labor जो physical होता है are located at place where the plenty of cheap labor is available, abundantly is the plenty. ठीक है. So industries like iron and steel, chemicals, diamond cutting, ये सब जो है जहाँ पे सब लोग नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग करता है ना डायमंड का, ज्वेलर सब होता है. मान लो उसने ज्वेलरी बनाई तो सबसे बनेगा, हमसे तुमसे बनेगा? नो, इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक आर्ट एंड क्राफ्ट. तो वो जो स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होता है स्किल बन, तो ऐसा भी चाहिए हम लोग को, और दोनों तरह के लोग मिले तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे. फिर हो गया क्लाइमेट, दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेदर इट इज एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम वेट, बिकॉज वी नो दैट व्हेन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. कोल्ड भी अच्छा है, बहुत गर्मी लग रही है तो थोड़ा ठंडी हो जाए तो अच्छा लगता है, बहुत ठंडी लग रही है तो दैट इज ऑल्सो बैड. Okay, so we need the moderate climatic condition in order to perform well. अभी मान लो -50°C हो जाए, हम लोग यहीं पे बैठ करके we cannot concentrate on studies, क्योंकि ज़्यादा concentration तो भाई हम लोगों का ठंडा से बचाने में लग जाएगा. So our focus will be dispersed. Okay, so this is what that some sort of a climatic condition, a particular moderate climatic conditions are also required. And plus processing में पानी भी खूब चाहिए होगा. मान लो आपने स्मेल्टिंग किया तो स्मेल्टिंग, मान लो आयरन ओर से आपने आयरन निकाला तो पिघलाओगे, आप मेल्टिंग करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट, फिर स्मेल्टिंग पॉइंट, सब जगह पे फिर कूलिंग करोगे, कूलिंग पॉइंट, बहुत तरह का पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी. सो यू नीड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर ऑल्सो. सो सुइटेबल क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज. कॉटन, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैन डेवलप वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन इज फेवरेबल. वाटर इज रिक्वायर्ड. अब देख लो बहुत देर से मशीन चल रहा है भाई, उसको ठंडा करने के लिए स्प्रिंकल करना पड़ेगा पानी का. ठीक है. सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग मशीन्स, मिक्सिंग और वॉशिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. हिंस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा ऑल्सो डिटरमाइन द लोकेशन और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज. यानी पानी हो गया. और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट जब तक होगा नहीं, एंड मूवमेंट का भी बिकॉज यू नीड द रॉ मटेरियल टू बी ब्रॉट इन टू द फैक्ट्री and you need the finished goods also to be going into the market. So इनके लिए एक efficient, cheaper, quicker means of transportation भी चाहिए. So transport facilities are required. So availability of well connected, that is well knit transport network is necessary for bringing of, gating of, that is procurement of raw material and distribution of finished, that is final goods to the market. अब अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कह रहे हैं हम लोग? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आई हैव गिवन द एग्जांपल इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस वन, इंट्रोडक्टरी क्लास. एनी एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड ऑन अर्निंग मनी. एंड मनी कहाँ से कैसे अर्न होगा? 3 चैनल्स, प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंजम्पशन. टोल्ड. सो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया. अब कंजम्पशन कहाँ होगा? तो मार्केट में. तो वी नीड द मार्केट ऑल्सो, द लार्ज मार्केट रिक्वायर्ड. छोटा मार्केट है, मैंने बना लिया लाखों टन का सामान और बेचना कहाँ है मेरे को? गांव का एगो छोटा सा. गांव में भी मार्केट होता है, लोगों तुमने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा, बहुत तरह का मार्केट्स होते हैं. तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो फायदा होगा, खाली अपने यहाँ बेचने से नहीं होगा. सो वी नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट्स ऑल्सो. So the goods are produced to be sold. That is very important. That is the final aim of the any production, is to sell them. So hence market or demand for the industrial product also determine the location of industries. For example, a cold region like Jammu and Kashmir has the requirement for kaisa market? So woolen garment ka. So woolen textiles will be located in that region. यहाँ पर अगर बहुत ठंडा है, woolen textile लगाएंगे तो यहाँ पे बिकने की संभावना ज़्यादा है. द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल. दूसरा चीज़ जो इन्फ्लुएंस करता है कि आदमी में कितनी कैपेसिटी, यहाँ पे कैसा पर कैपिटा इनकम है, लोगों का इनकम कैसा है. अब यहाँ पे मान लो कोई सिर्फ मजदूर क्लास के लोग डेली अर्नर, डेली वेज अर्नर कर रहे हैं, तो अब वैसे जगह पर जैसे गोटा में आज से कुछ साल पहले तक तुम्हारे पास आज शॉपिंग मॉल और ये वो खोलने लग गया, बिकॉज द पीपल हैव गुड एनफ द मनी ऑल्सो टू परचेज दोज थिंग्स.
अगर हमारे पास इतना ही रहता कि हम रोटी सब्जी खा करके खुश भी थे और ज़रूरत भी उतनी थी, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते थे, देन द पिज़्ज़ा एंड बर्गर सेंटर शुड नॉट हैव बीन। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा हट नहीं खोल रहे हैं लोगों को उस तरह का, अब लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, लोगों का सोच बदल रहा है, उनके पास पैसा भी है। सो एवरीथिंग इन द मॉडर्न टाइम्स दैट वी बिकेम मॉडर्न एंड वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स ऑल्सो एंड आवर पॉकेट इज ऑल्सो अलाइन। तो भाई अब इस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकने के, तो देखें कि परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है मार्केट। देयरफॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स आर लोकेटेड नियर सिटी, इसलिए जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि सीधा कंज्यूमर लोगों के, इसलिए तुम देखो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इनटू द सिटीज एंड टाउन्स इंस्टेड ऑफ लोकेटेड इन द विलेजेस। और फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखिए कि पैसा मेरे को मान लो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो कम से कम कितने पैसे चाहिए, कम से कम व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ लार्ज बिग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कल ही पड़ेगा मोर देन, ठीक है। अब भाई 1 करोड़ रुपया तो सबके पास कैश बैलेंस होगा नहीं, तो जाहिर है कि मेरे को जो चीपेस्ट लोन के सोर्सेज हैं, बैंक्स हों, कोऑपरेटिव्स हों, जो भी हो, क्योंकि प्राइवेट लेंडिंग में जाएंगे तो उनके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो मिनिमाइज नहीं होगा प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जोड़ेंगे एक्स्ट्रा सरचार्जेस में हम लोग, तो एज अ रिजल्ट वी विल नॉट सस्टेन। तो मेरे को ईजिली मिल जाए, चीपली भी मिल जाए, पैसे भी पूंजी भी मिल जाए, तो भी वहाँ पे लगे, इसलिए जहाँ पे फ्लरिश्ड बैंक्स हैं, ये वो हैं, वहाँ पे देखो इंडस्ट्रीज के लगने की संभावना फिर रहती है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक प्लेस एट अ फास्ट पेस इन डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग लॉट्स ऑफ capital, while backward countries left behind, that is lag behind in industrial development due to lack of capital. This is because a large amount of money is required to set up a factory, खाली फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं, for purchasing land and machinery, for construction of the factory, for acquiring raw material, for giving the bill to the power, to the wages to the labor, ये सब में तो पैसे ही चाहिए तुमको, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन वोन देती है, और वो भी कब, लो इंटरेस्ट पे देती है, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड होगा इंडस्ट्रीज लगाने का। हाउएवर लोकेशन ऑफ फैक्ट्री इज यूजुअली नॉट डिटरमाइंड बाय द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एक ऐसा चीज़ है जो हम आज के डेट में कहीं और से भी मैनेज करें, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता है, लेकिन ये भी मिल गया तो भी सही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, जो लास्ट है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट को मान लो कि मैंने सारा चीज़ बना लिया इजीली चीपली, लेकिन मेरे बनाए हुए सामान पर मार्केट में जाने से पहले गवर्नमेंट कह दिया कि बहुत टैक्स लगेगा आपको, मेरे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, उसको एलपीजी पॉलिसीज कहते हैं गवर्नमेंट का, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वो लिबरलाइज कर दिया कि हम भाई कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं, आप जैसे बनाना है, जैसे बेचना है, आप देखिए मिनिमम टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। देखते हो चाइना का सामान भारत में सस्ते दामों पर मिलता है, कैसे मिलता है, भारत में आएगा तो उनको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो भारत के गवर्नमेंट ने कहा कि ओके, द गवर्नमेंट हैज़ बिफोर 1990 वही सामान इंडिया में क्यों नहीं आता था या महंगा क्यों बिकता था, बिकॉज दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सुनते होगे, पढ़े होगे कि धोनी ने एक कार खरीदा जर्मनी में, लेकिन भारत आते आते उसका दाम इतना हो गया, क्यों हो गया, कि इट हैज़ टू बहुत सारे क्लियरेंस से गुजरना पड़ा उनको, बहुत जगह पे टैक्सेस देना पड़ा, बहुत तरह का कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ा। तो इतना सब देने के बाद जब हम आपके मार्केट में पहुंचेंगे, पता चला कि मैंने इधर प्रोडक्शन तो कम में कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा सरचार्जेस देते देते मार्केट में मेरा पैसा 11 रुपया लग गया हमको पर प्रोडक्ट, यहाँ तो 10 और 8 और 9 में बिक रहा है। तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इवन आफ्टर द फैक्टर्स आर देयर अवेलेबल, बट गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इनटू दैट वे। तो एक तीसरा जो फैक्टर है, लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। So that is government policies also determine the location. The above mentioned factors provide, ये हो गया इन सारी चीज़ों से तब हम लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, और तब पे तो इंडिया में इस वजह से इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया विच आर नोन एज द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन है यहाँ पे, तो दिया हुआ है दैट इंडस्ट्रियल रीजन्स, क्योंकि सभी जगह पे तो ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे लगा, या जहाँ पे अवेलेबल या तो कैन बी अवेलेबल और दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल, और
मेड अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट, कि भाई हर जगह पे हम रॉ मटेरियल, जब अगर हर कारखाना हम कोयला फील्ड के बगल में ही लगाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है सब जगह पे. देयर आर मेनी थर्मल पावर स्टेशंस इन इंडिया, नॉट ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड नियर द, आई मीन अराउंड द कोल फील्ड. तो चलो अराउंड नहीं मिला, थोड़ा दूर भी गया, तो या तो वहाँ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो चीपली अवेलेबल हो सके. ठीक है, इस आधार पर देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रियल रीजन्स दैट इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया. तो सेंट्रल और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्री ज़्यादा है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्री ज़्यादा है, ईस्टर्न और सदर्न एशिया में इंडस्ट्री ज़्यादा. और इंडिया में कौन कौन इलाका में है? मुंबई पुणे बेल्ट, जो बेल्ट मीन्स इलाका, एरिया रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, हुगली बेल्ट, बैंगलोर तिरुचिरापल्ली बेल्ट, और गुड़गांव जो हरियाणा में, दिल्ली नोएडा रीजन, ये सब जगह पे इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं. बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर ईदर इजिली अवेलेबल और मेड अवेलेबल इजिली एट अ चीपर कॉस्ट. ठीक है.